Good morning, student. Good Good morning, morning. sir. Good morning, sir. Uh, Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Okay. In last lecture, what we discussed? About indeterminate forms. L, L hospital form with indeterminates. Okay. In last lecture, we have discussed about the limit of indeterminate forms by using L hospital or L'Hopital rule. Okay. So today we are going to discuss about the next topic of our unit 1. It is taste of convergence of series. Okay, in first unit we completed 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 में आधा तो कर ही दिया है पावर सीरीज. ओके, and 1.6 में completed. Okay, we completed this one. Now this is the last topic of our unit, test of convergence of series by comparison test, ratio test, root test, Leibniz test. So today we are going to discuss about the convergence of the series. Okay, so we already discussed about the power series, indeterminate forms. Okay, then we go for the test of convergence of the series. So before going to discuss about the series, first we discuss about the sequence, because first one is sequence, then you can define the series. So the term, 1 minute, series. Anybody have any idea about the series and sequence? आपको पता है कि व्हाट इज द सीरीज एंड सीक्वेंस? आपको कहीं पर पढ़ाया गया है इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड? एनीबडी? एनी आइडिया? यस और नो तो बताओ. यू कैन टेल मी यस और नो. इफ यू नो देन यस, एंड इफ यू डोंट नो 11 12th में पढ़ा था सर. बट आइडिया Yes, नहीं. sir. okay, okay. So Yes, sir. we start with the sequence. Okay, so some concepts to discuss for sequence. Sequence is order set of real numbers a1, a2, a3. Okay, and it is denoted by curly bracket an. Okay, यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया है that is the used for sequence only. Okay, तो अब इसका जो nth term है उसको यहाँ पे डाल दो and you can say that an. For example, if I write down 1 upon n, then this is one sequence because the term of 1 upon n will be 1. Okay, 1 by 2, 1 by 3 and so on infinite. Okay, बट यहाँ पे देखो एंड ऑर्डर सेट, वो ऑर्डर सेट होना चाहिए, मींस रैंडमली नहीं होना चाहिए. दैट इज द कंडीशन. सो a1, a2, a3 is called a sequence and it is denoted by an. if the number of terms is unlimited, means यहाँ पे डॉट 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 चलता ही रहता है, then you can say that it is the infinite sequence and an is its nth term. means an जो हम indicate कर रहे हैं, that is the nth term of that sequence. Okay, so is there any doubt in sequence? No, sir. No, sir. So we have one example for that, 3, 5, 7, 9 and so on. So this is all are odd terms, 3, 5, 7, 9. So you can define the nth term of this sequence. What is the nth term of this sequence? un is equal to 2n plus 1. मीन्स आप जैसे n पे जाएंगे तो वो 2n plus 1 पे बिहेव करेगा. ओके, यहाँ पे आप देखो u1 रिप्लेस करेंगे, n is equal to 1, तो 2 plus 1 3 हो जाता है. दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 से ही आपको स्टार्ट करना है. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सीक्वेंस. अब लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीक्वेंस एंड सीरीज टू डिफाइन द कन्वर्जेंस एंड द डाइवर्जेंस ऑफ द सीक्वेंसेस. ओके, तो यहाँ पे आप समझ लो कि लिमिट क्या है. तो लिमिट मीन्स अ सीक्वेंस इज सेड टू टेंड्स टू अ लिमिट l. मीन्स कोई सीक्वेंस टेंड्स टू l होगा कब? if for every epsilon greater than 0 a natural number n0, means कोई मुझे n0 ऐसा मिलेगा can be found such that वो दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा
फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n0 मीन्स n0 से मैं जितने भी नंबर बड़ा लेता जाऊंगा और उसके लिए अगर ये डिस्टेंस become very small, then you can say that this sequence an has the limit L. Is it clear everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके अब लिमिट से हमको दो चीज मिलेगा, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, तो वो बहुत ही समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो कन्वर्जेंस कब होगा, जो भी आप लिमिट फाइंड करेंगे वो फाइनाइट नंबर मिलेगा, मीन्स कोई भी नंबर मिलेगा, मीन्स कोई भी हमको फाइनाइट लिमिट मिलेगा, देन यू कैन से दैट द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, बट if the limit of sequence n does not tends to finite number, then that sequence is called as divergent sequence. Is it clear everybody? Yes, sir. ओके, मीन्स अगर वो कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उसका आंसर अगर कोई फाइनाइट नंबर मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एंड उसकी लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं और उसका अगर आंसर फाइनाइट नंबर नहीं हो रहा है, फाइनाइट नंबर नहीं हो रहा है दैट मीन्स इनफाइनाइट होता होगा, ओके, तो उसको हम डाइवर्जेंट बोलेंगे। ओके, उसके लिए एग्जांपल देखो, यहाँ पे 1, 1/4, 1/9 एंड सो ऑन 1/n² है। तो इफ आई फाइंड द लिमिट ऑफ दिस दैट मीन्स मेरा an यहाँ पे कौन सा हो गया 1/n²। सो इफ आई फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n², क्या होगा इसका आंसर? 0. 0. 0. That means there is a finite number. Okay, so the given sequence is convergent sequence. But if you find the limit of the second example, that means 3, 5, 7 up to 2n plus 1, then the limit n tends to infinity of an, means an मेरा कौन सा है 2n plus 1. What is the answer of this limit? Infinite. Infinity. That means there is no any finite number. So the given sequence, second sequence, is divergent sequence. Is it clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ओके, तो मीन्स ये लिमिट के ऊपर ही डिपेंड है कि अगर लिमिट उसका फाइनाइट मिलता है देन कन्वर्जन, अगर लिमिट इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन हो रहा है तो उसके लिए हम डाइवर्जेंट बोलेंगे, मीन्स वो कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, देन यू कैन से दैट इट इज डाइवर्जेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बाउंडेड सीक्वेंस। वी आर बाउंडिंग द सीक्वेंस, मीन्स आपको अभी फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 में आपके घर पे एक इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि आपको हमारे ये सोसाइटी या फिर मोहल्ले के बाहर नहीं जाना है, दैट मीन्स दे डिफाइन द बाउंड्री ऑफ योर। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी सेम तरीके से हम सीक्वेंस की भी बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं। तो अ सीक्वेंस n इज सेड टू बी बाउंडेड, ओके, इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर k, मीन्स हमको कोई ऐसा k ग्रेटर देन 0 मिलेगा सच दैट मॉड्यूलस ऑफ an लेस देन k फॉर एवरी n, मीन्स हमको कोई ऐसा कोई नंबर k मिल जाता है जो इससे बड़ा हो, देन इट इज द बाउंडेड सीक्वेंस। Is it clear everybody? For every n, okay? So bounded sequence में कोई डाउट? एग्जांपल आप कौन सा लें? बाउंडेड सीक्वेंस में क्या करना है आपको, सिर्फ उसकी, मैं एग्जांपल तो लेने ही वाला हूँ, डोंट वरी, उसकी बाउंड्री आप फिक्स कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए। डन? अंडरस्टैंड? तो बाउंड उसको कंट्रोल कर सकते हैं, देन यू कैन से दैट इट इज द बाउंडेड। एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। डन? क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग यू नो वेरी वेल। इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, जब फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म, सेकंड टर्म से थर्ड टर्म ऐसे ही बढ़ता ही जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग। एंड फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म छोटा है, सेकंड से थर्ड टर्म छोटा है, तो ऐसे करके जाएंगे तो उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग। और यहाँ पे मैथमेटिकल वे में उसको कैसे बोलते हैं, an लेस और इक्वल टू n प्लस 1, an ग्रेटर इक्वल टू n प्लस 1। ओके, तो इंक्रीजिंग के लिए आपको चेक करना है कि an लेस और इक्वल टू n प्लस 1 है कि नहीं, एंड डिक्रीजिंग के लिए आपको चेक करना है an ग्रेटर इक्वल टू n प्लस 1 है कि नहीं। इट इज वेरी इजी। फॉर एग्जांपल यहीं पे जो एग्जांपल दिए उसके बारे में सोचे तो 1 and 1/4 में क्या आएगा, 1/4 बड़ा है या छोटा? छोटा है, डिक्रीजिंग।
decreasing. So this series is decreasing sequence. Okay, sorry, sequence, not a series, sequence. Okay, and 3, 5, 7. What about this? Increasing sequence. Increasing. Increasing sequence. Okay, so is there any doubt in this slide? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. So next, monotonic sequence. Monotonic sequence means दोनों में से कोई एक होना चाहिए. Means either increasing or decreasing. Means you can define the increasing and decreasing behavior of a sequence. A sequence n is called monotonic if it is either increasing or decreasing. Okay, so it is known as the monotonic sequence. तो यहाँ पे देखो 1, 4, 7, 10 up to so on. What is the behavior of this sequence? Increasing or decreasing? Increasing. Increasing. Increase. Whenever you say increasing, then it is monotonically by default. Okay. 1, 1 by 4, 1 by 9 अभी हमने डिस्कस किया. This is decreasing sequence. So automatically Decreasing. that means it is known as the monotonic sequence also. अब यहाँ पे देखो 1 minus 1, 1 minus 1. What about this sequence? नहीं बोल सकते ना ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. No, sir. Yes, sir. Okay, so that means Yes, sir. it is not a monotonic sequence, means neither increasing nor decreasing. बट ऐसी जो सीक्वेंस होगी उसको हम ऑसिलेटरिंग बोल सकते हैं. ऑसिलेटरिंग मीन्स उसकी दो लिमिट डिफरेंट मिल सकती है. मीन्स उसकी अगर आप सब सीक्वेंस लेंगे तो दो सब सीक्वेंस बन सकता है 1 1 1 1 1 1 1 एंड -1 -1 -1 -1. जो फर्स्ट हमने बोला 1 1 1 वो कहाँ पे टेंस टू होगा 1 के आगे, एंड जो सेकंड है वो कहाँ पे टेंस टू होगा -1 के आगे. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑसिलेटरिंग सीरीज. ओके, मीन्स दो जगह पे ऑसिलेट कर रहा है. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, a monotonic sequence always tends to a limit. Means monotonic जो sequence होगा वो always कोई ना कोई limit तो आपको दे ही रहा होगा. Either it will be finite or infinite. Clear? तो monotonic जो भी sequence होगा उसका आपको दो possibility है. It may be finite or infinite. Okay, a sequence which is monotonic and bounded means अगर आप ये दोनों को क्लब कर देते हो, अगर ये आप आइडेंटिफाई कर देते हो कि वो मोनोटोनिक भी है एंड बाउंडेड भी है, देन इट इज 100% कन्वर्जन. क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये थोड़ा ध्यान रखना. नेक्स्ट, Yes, sir. सीरीज. दिस इज अबाउट द सीक्वेंस. नाउ वी गो फॉर द सीरीज. तो सीरीज में क्या करना है, जो भी आपके पास सीक्वेंस की टर्म थी उसके बीच में अब एडिशन आएगा या फिर सब्सट्रैक्शन आएगा. क्लियर? तो उसको हम सीरीज बोलते हैं, सीरीज एक्सपांशन. तो डेफिनेशन, इफ u1 u2 u3 up to un is an infinite sequence, मीन्स हमारे पास एक सीक्वेंस था ऑफ रियल नंबर्स. देन अगर उसके बीच में आप प्लस 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 कर देते हो, u1 प्लस u2 प्लस u3 up to un up to so on is called an infinite series. It becomes series. Okay, and infinite series is denoted by, if you write down the infinite series in single term, then summation n equal to 1 to infinity un. Means summation indicates the addition. Okay, and limit runs from 1 to infinity and un. अगर आप इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट रिप्लेस n is equal to 1 in un. तो u1, n is equal to 2, u2, n is equal to 3, u3 and so on. So this is the notation for the series. Okay, the sum of its first n terms means अगर मैं इसमें से first n terms ले लेता हूँ, n terms means u1 plus u2 plus u3 and so on and un and so on. This is my series. Okay, अब उसमें से मैं पहले nth टर्म को ही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और उसका सिंबल है Sn. मीन्स अगर मैं फर्स्ट nth टर्म का ही सोच रहा हूँ तो उसको बोलेंगे हम पार्शियल सम. मीन्स उसका हमने पार्ट लिया है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पार्शियल सम. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
मींस आप अगर Sn को डिफाइन करते हो तो इट इज नोन एज द पार्शियल सम एंड द डिनोशन फॉर मींस आप कैसे डिनोट करेंगे उसको समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n n तक ही जाना है एंड uj मींस वी आर यूजिंग द इंडेक्स j हियर. Okay, so this is known as the partial sum of the series. अब एग्जाम्पल है सीरीज का तो 1 + 3 + 5 + 7 अप टू so on इज एन इनफाइनाइट सीरीज हम बोल सकते हैं. अब इसके कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट की बात करें तो इट इज वेरी सिंपल, लेकिन जब बाकी के टेस्ट जो अभी हम फॉर एग्जांपल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो अब तक हमने कोई टेस्ट डिस्कस नहीं किया है जो हमारे सिलेबस में कंपैरिजन टेस्ट है, रूट टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है. तो जब ये टेस्ट नहीं थे, ये तो एडवांस स्टडी है, जो ये टेस्ट नहीं थे तब वो लोग कैसे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट डिफाइन करते थे. सो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. तो वो पार्शियल सम से वो डिफाइन करते थे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, क्योंकि इनफाइनाइट बिहेवियर तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन उसका आधा लेके मींस आधा भी नहीं बोल सकते हम, उसका पार्शियल लेके वो चेक करते थे कि इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. तो Sn इज इक्वल टू u1 + u2 + u3 अप टू un. दिस इज माय पार्शियल सम. तो इसका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर मैं फाइंड करता हूं और अगर वो फाइनाइट मिलता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कन्वर्जेंट. ओके, एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn में फाइंड करता हूं और अगर वो नॉट फाइनाइट मिलता है, ओके, तो उसको बोलूंगा मैं डाइवर्जेंट. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो वही का वही लिखा होगा. If Sn tends to finite number as n tends to infinity, then the series summation n equal to 1 to infinity un is said to be convergent. Okay, then next, okay, एग्जाम्पल लिया है तो ये एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, उसके बाद डाइवर्जेंट की बात करेंगे. तो एग्जाम्पल ये दिया है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/1 × 3 + 1/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 प्लस डॉट 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 1 यहाँ पे प्लस आएगा 1/2n - 1 2n + 1. ओके, इसका मुझे कन्वर्जेंस चेक करना है. तो यहाँ पे तो फाइनाइट है तो उसका Sn आप देखेंगे तो दिस इज माय Sn. यस और नो? यस सर. तो Sn को मैं थोड़ा एडजस्ट करना चाहता हूँ तब जाके इसकी लिमिट मिलेगी, क्योंकि इंडिविजुअल लिमिट आप फाइंड करेंगे तो फर्स्ट का 1/3 होगा, सेकंड का 1/15 होगा, थर्ड का 1/35 होगा. ऐसे इंडिविजुअल नहीं कर सकते क्योंकि इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास दो ही टर्म बचेंगे. देखो यू कैन चेक हियर. सो यहाँ पे देखो फर्स्ट करके मैं ऐसे कर रहा हूँ, उसके बाद थर्ड एंड डॉट 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 करके लास्ट के बारे में सोच रहा हूँ. तो लास्ट के बारे में अगर मैं सोचूं तो यहाँ पे देखना, तो मैं यहाँ पे 2n + 1 माइनस 2n - 1 करूं डिवाइड बाय 2n - 1 इंटू 2n + 1 कर सकते हैं कि नहीं हम? यस और नो? यस सर. तो यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा 2 बच रहा है ऊपर, देखो तो उसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरा प्रीवियस स्टेप आ गया कि नहीं? पता चल रहा है? यस सर. ओके, चलो रिपीट करता हूँ जिसको नहीं पता चला हो. मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2n + 1 माइनस 2n - 1 जो दो फैक्टर थे उसके बीच में माइनस कर दिया और जो नीचे था वो एज इट इज. तो यहाँ पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरा 2n कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन 1 + 1 2 हो जाता है. तो 2 यहाँ पे नहीं है तो मुझे 2 से डिवाइड करके ही 1 मिल जाएगा. तो 1/2n - 1 2n + 1 मेरा यहाँ पे मिल रहा है. ओके, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये तो बाद में मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको जल्दी पता चले, है ना. प्लस डॉट 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 1/2. अब यहाँ पे क्या बच रहा है देखो, यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2n + 1 डिवाइड बाय दिस वन, तो 1/2n - 1 बचा, बीच में माइनस 1/2n + 1 बचा. यस और नो? Yes, sir. यस सर. इसमें आप n = 1 रिप्लेस करो. चलो n = 1 रिप्लेस करो तो क्या होगा, 2 - 1 होगा ना, तो 1 - 1/3. ओके, देखो n = 1.
n इज इक्वल टू 2 रिप्लेस करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 दैट मीन्स 1/3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1/5 माइनस 1/7। ओके, तो यहाँ पे देखो जो 1 अपॉन 1 इंटू 3 था उसका मैंने पार्शियल सम करके 1 माइनस 1/3 मिलेगा अरेंजमेंट करके। इसके लिए 1 अपॉन 3 इंटू 5 के लिए 1/3 माइनस 1/5 मिलेगा। इसके लिए 1/5 माइनस 1/7, यहाँ पे 1 अपॉन 5 इंटू 7, ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट का तो मैंने आपको दिखाया। सेम यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5, यहाँ पे 1/5 माइनस 1/7। इज देयर एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. What about others? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. No, Up, sir. if you observe the each term, then you can say that this second and third term will be cancelled out because minus plus फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म विल बी कैंसिल आउट। ऐसे करते करते आपको ये भी इसके प्रीवियस वाला भी इसके प्रीवियस में होगा, है ना। तो ऐसे करते करते कितने टर्म्स बचे? सॉरी, यहाँ पे 1/2 भूल गया। हाँ सॉरी, 1/2 एवरीवेयर है, नहीं तो फिर हमारा वापिस ऊपर वाला टर्म नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे 1/2 तो बचेगा ही बचेगा। यहाँ पे 1 बचा, ओनली फर्स्ट एंड लास्ट दो ही बचेंगे, दैट मीन्स माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ यू Yes, कैन sir. Yes, sir. now you can find the limit of Sn easily. So limit n tends to infinity, Sn is equal to 1/2, बाहर चला जाएगा। Limit n tends to infinity 1 minus 1 upon 2n plus 1. So what is my answer here? 1/2. Yes, 1/2. 1/2। 1/2. यहाँ पे 1 माइनस 0 होगा तो 1 ही आएगा, तो 1/2 बचेगा। तो दैट मीन्स इट इज फाइनाइट। Yes, sir. Okay. Yes, That's sir. why the given series is convergent. Is there any doubt? No, sir. No, sir. Okay. Yes, sir. No, sir. All the discussion is also in presentation. So यहाँ पे देखो, Sn is equal to 1 upon 1 into 3 plus 1 upon 3 into 5 and so on. This is the given series का उसका पार्शियल सम लिया, उसको रीअरेंज किया जैसे हमने किया ऐसे ही। तो यहाँ पे 1/2 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 बचता है। उसके ऊपर लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1/2 आएगा, विच इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। सो दैट्स व्हाई द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, नाउ डाइवर्जेंट के लिए, if Sn tends to infinity, okay, Sn tends to infinity as n tends to infinity means limit अगर infinity मिला then the series summation n equal to 1 to infinity un is said to be divergent. okay, तो उसके लिए भी एग्जांपल है यहाँ पे देखो, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो n। तो इसका Sn क्या होगा? चलो ऊपर लिखते हो जो आपने देख लिया। Sn क्या होगा, कौन बताएगा? n n, अकेला n, अकेला n होगा n into n plus n divided by 2. यस, ओके n। तो उसको आप पढ़ के आए थे, दिस इज समेशन n, और समेशन n की फॉर्मूला क्या होती है? n into n plus 1/2. ओके, तो n इंटू एन प्लस 1/2। अब इसका लिमिट आप फाइंड करो तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1/2। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस लिमिट? Infinitive. इन्फिनिटी। जैसे इन्फिनिटी मिला देन यू कैन से दैट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट। ओके, सो यहाँ पे Sn लिखा n प्लस 1/2 और Sn की लिमिट निकाली, इन्फिनिटी मिल रहा है, दैट मीन्स द सीरीज इज डाइवर्जेंट। सो इज देयर एनी डाउट इन दिस स्लाइड? एनीबॉडी? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, सम स्टैंडर्ड लिमिट। अब ये थोड़ी फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है और आपको हेल्पफुल रहेगा कभी भी जब भी आप लिमिट कॉन्सेप्ट अप्लाई करो तब। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n अपॉन n 0
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन log n 0, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू n e रेज टू 1 हुआ इसलिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस a अपॉन n रेज टू n इज इक्वल टू e रेज टू a, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस n रेज टू 1 अपॉन n इज इक्वल टू e, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n रेज टू 1 अपॉन n आप करेंगे तो 1 मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल रेज टू 1 अपॉन n करेंगे, इट गिव्स मी इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू 0 e रेज टू n e रेज टू 0 e रेज टू 0 मींस 1, ये बहुत ध्यान रखना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x रेज टू n इज इक्वल टू 0, बट कब, जब x -1 से 1 के बीच में, मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1 का मीनिंग क्या हुआ, -1 लेस देन x लेस देन 1, तो अगर x इज दोनों के बीच में है देन यू कैन से दैट द value of this limit will be 0. Limit n tends to infinity x raised to n is equal to infinite if modulus of x greater than 1, means इसके अलावा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू एक्स रेज टू n मीन्स x रेज टू n को देखो यही फॉर्मूला है, सिर्फ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया n से, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके आंसर में, 0 इफ मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल, अब यही आंसर था लेकिन उसको n फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो पर भी वो 0 ही रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, मींस ऐसा नहीं कि इसका जो रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाएगा और सभी वैल्यू के लिए यही आंसर मिलेगा, ओके, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू 1 अपॉन n, तो उसका आंसर आएगा 1 अपॉन e, ओके, so these are the formula, you can take a screenshot also, okay, screenshot ले सकते हो, जब भी हमको जरूरत पड़ेगी हम इसका यूज करेंगे, okay, so take a screenshot, then can we go ahead? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then next one is example 1 plus 4 plus 9 plus 16 up to 7, okay, तो पहले इसका आइडेंटिफाई करो व्हाट इज द पार्शियल सम, ओके, इसका पार्शियल सम क्या ले सकते हैं हम, N square. यस n स्क्वायर, 1 प्लस 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, देन यू कैन गो फॉर द n स्क्वायर, नाउ यू हैव द फॉर्मूला ऑफ समेशन ऑफ n स्क्वायर, व्हाट इज दैट, n into n plus 1 into 2n minus 1 by 6. 2n minus 1 by 6, okay, so इसका लिमिट निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn is equal to limit n टेंड्स टू इंफिनिटी n plus 1 into 2n minus 1 divided by 6, what is the answer, Infinity. infinity, so that is the divergent series, so we are given that 1 plus 4 plus 9 plus 16, Sn हमने कर दिया n into n plus 1, ओके, आपका आंसर गलत था बेटा, यहाँ पे प्लस आएगा है ना 2n, लेकिन आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में +1 आएगा, ओके, तो प्लीज कीप इन योर माइंड दिस इज +1, ओके, 2n plus 1 आएगा, सो इंफिनिटी, क्योंकि सब जगह पे प्लस है ना, तो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn का आंसर आपको इंफिनिटी मिला, दैट्स व्हाई द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, okay, so is there any doubt in this example, anybody? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, next example, चलो इसको ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि क्या हो सकता है, 4 minus 9 plus 5 plus 4 minus 9 plus 5 plus 4 minus 9 plus 5 up to 7, चलो इसका मुझे डिस्कशन चाहिए कि आप क्या क्या सोच सकते हो इसके बारे में, देन वी विल डिस्कस, Oscillatory. 0. ओके, ऑसिलेटरी बोला किसी ने, सही है, और 0 मींस कैसे आएगा 0, 4 plus 4 5 minus minus 9 is equal to 5. 5 minus 5 plus 5 is equal to 0. तो यहाँ पे देखो आपका nth टर्म तो आपको पता नहीं है, लेकिन नहीं है ना पता, यहाँ से सीधा बोल सकते हैं कि दिस इज माय nth टर्म, No, No, sir. sir.
देखिए क्योंकि No, sir. कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है इसलिए, क्योंकि पैटर्न में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 3 का एक ग्रुप है, तो ये 3 का आंसर मुझे 0 मिल रहा है। ओके, लेकिन जैसे ही मैं इसमें एक टर्म ऐड करूं तो मेरा आंसर क्या हो जाता है? 4। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही मैं दूसरा एक टर्म ऐड करूं तो मेरा आंसर फिर से चेंज हो जाता है। तो मेरे फॉर एग्जांपल मैंने -9 को ऐड किया तो क्या हो जाता है आंसर? -5. -5। और नेक्स्ट टर्म अगर मैं उसको ऐड करने जाता हूं देन इट विल बी रिपीटिंग फ्रॉम हियर। Yes, sir. Yes, है ना? sir. तो यहाँ पे इसका आप पार्शियल सम देखेंगे तो यू हैव द 3 पार्शियल सम, क्योंकि फर्स्ट 3 टर्म है उसका S3n, उसका अगर आप निकालेंगे तो 0 मिलेगा। आप 3n+1 मीन्स 3n में एक टर्म ऐड करेंगे, फोर्थ होगा, तो उसका आंसर आएगा 4। अगर आप 3n प्लस एक दूसरा ऐड किया है तो 3n+2 और उसका आंसर आपको -5 होगा। फिर से आप S3n+3 करेंगे तो फिर से उसका आंसर 0 और ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. If you find out the limit n tends to infinity as n, then what about the limit n tends to infinity as n? Not unique? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. और हमारा Yes, sir. लिमिट तो हमको ऐसे दिखा रहा है कि अगर लिमिट चाहिए तो एक ही होना चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए। अगर आपको 3 आंसर मिल रहे हैं दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हमको हमारी जो सीरीज है वो तीन जगह पे डिस्टरबेंस ला रही है, एक 0, 4 एंड -5। तो यहाँ पे यूनिक नहीं है लिमिट, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट द सीरीज इज ऑसिलेटरी। ओके, ऑसिलेट कर रहा है 3 जगह पे, इसीलिए देखो यहाँ पे S3n is equal to 0, S3n+1 is equal to 4 and S3n+2 is equal to -5. So Sn does not tends to an unique limit, so the series is oscillatory. अगर यूनिक लिमिट होता तो हमारे पास फाइनाइट नंबर होता या फिर इनफाइनाइट नंबर होता। तो अगर फाइनाइट नंबर होता तो हम कन्वर्जन बोल देते, इनफाइनाइट नंबर होता तो डाइवर्जेंट बोल देते, लेकिन यहाँ पर वो दोनों में से कोई केस नहीं है। दैट्स व्हाई एंड हियर द सीरीज हैज 3 different behavior 0, 4 and -5, so we can say that it is oscillatory. Is it clear everybody? Any question? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. Then next, general properties of infinite series means जनरल प्रॉपर्टी है कि आप कहीं पर भी इसको देखेंगे तो यू कैन से डायरेक्टली। नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? तो पहले तो यहाँ पे स्टेटमेंट है द नेचर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज डज नॉट चेंज, मीन्स वो कभी चेंज नहीं होता। मीन्स एक बंदा ऐसे बोले कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और दूसरा बंदा ऐसे बोले कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो किसी एक में गलती है ना? क्लियर? तो वो कभी बिहेवियर चेंज नहीं करता है। आप कोई भी केस से मल्टीप्लाई करो या फिर 2 टर्म को ऐड करो या डिलीट करो, नए टर्म उसमें ऐड करो या डिलीट करो, तो उसका बिहेवियर कभी चेंज नहीं होता है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, ऑसिलेटरी में ऐसा हो सकता है, लेकिन जब कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट की बात करें सो इट इज नॉट ट्रू। ओके, सो द नेचर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज डज नॉट चेंज by multiplication of all terms by a non-zero number k by addition or deletion of a finite number of terms. So this is the general property of infinite series. अगर आपको MCQ में पूछा जाए कि
summation an and summation bn both are the series and both are the convergent, then what about the summation an plus summation bn? क्या होगा? कन्वर्जेंट। कन्वर्ट। क्योंकि दोनों कन्वर्जेंट है तो कोई इश्यू ही नहीं है ना। क्लियर? और अगर कोई आपको ऐसे बोले कि समेशन an आपके पास डाइवर्जेंट है एंड इफ यू मल्टीप्लाई बाय k into an, ओके, n into n या फिर k into n, देन व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस? डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगा ना। इज इट क्लियर? ओके, उससे कोई Yes. चेंज नहीं होगा बिहेवियर में। सो प्लीज कीप इन योर माइंड। ओके, जो मैंने बोला वही का वही नीचे भी है, देखो, इफ टू सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 to infinity un and summation n equal to 1 to infinity vn are convergent, then summation n equal to 1 to infinity un plus vn is also convergent। तो एमसीक्यू में कभी कभी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। अब नेसेसरी कंडीशंस फॉर कन्वर्जेंट, ओके, तो ये बहुत ही क्रिटिकली आपको समझना है। देखो, ये टॉपिक में समझना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग पावरफुल है देन द एग्जांपल विल बी वेरी स्मॉल। ओके, एग्जांपल तो बहुत ही स्मॉल है। अगर आपका टाइम भी सेव करना है तो पर भी ये टॉपिक में आप टाइम सेव कर सकते हो। ओके, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होना चाहिए। If a series summation n equal to 1 to infinity un is convergent, then limit n tends to infinity un is equal to 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कन्वर्जेंट है तब जाके आप बोल सकते हो कि उसका लिमिट n tends to infinity 0 होगा। लेकिन इज इट ट्रू फॉर कन्वर्स? मींस लिमिट n tends to infinity un 0 है और उसको आप कन्वर्जेंट बोल पाएंगे? इट इज क्वेश्चनेबल। ओके, उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। सिर्फ वन डायमेंशनल में मींस वन डायरेक्शन में ट्रू है, अदर डायरेक्शन में ट्रू नहीं है। तो उसके लिए एग्जांपल ये है, द कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट नीड नॉट बी ट्रू। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 + 1/√2 + 1/√3 + 1/√10। ओके, तो यहाँ पे आप देखो तो समेशन 1/√10 है मेरे पास, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, उसका nth टर्म मेरा 1/√10 है, तो √10 फाइंड करूं तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0. तो 0 आ रहा है तो ये कन्वर्जेंट होगा, ऐसा कन्वर्स बता रहा है ना हमको, अगर ट्रू होता तो। अंडरस्टैंड? कंफ्यूजन? हाँ, अगर कन्वर्स ट्रू होता, कन्वर्स मींस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0, देन समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity un इज कन्वर्जेंट। उसका दूसरा पार्ट ऐसे होता है, मींस ये है तो ये होगा। अभी हमने ऐसा बताया कि ये कन्वर्जेंट है तभी ये होगा। ओके, तो हम उसके लिए ट्राई कर रहे हैं कि सेकंड कन्वर्स वाला जो पार्ट है वो सही है कि नहीं। उसके लिए हमने एग्जांपल कंसीडर किया, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√10 हमको मिल रहा है 0, तो हमको ये कन्वर्जेंट मिलना चाहिए तब जाके स्टेटमेंट रिवर्स वाला ट्रू है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे इसका अगर आप सही में देखें तो व्हाट इज माय एसएन हियर? 1 + 1/√2 अप टू सो एंड 1/√10। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। अब इसका आप डायरेक्टली एसएन का एक सिंगल टर्म में नहीं निकाल सकते, इसलिए मैं क्या करूंगा, एक दूसरा आइडिया यूज करूंगा जो कंपैरिजन जैसा देगा। मींस अगर मैं फर्स्ट टर्म को ऐसा बोलूं कि इट इज द ग्रेटर देन 1/n, हो सकता है कि नहीं? सॉरी 1/√10, 1 बड़ा है ना इससे, यस सर। प्लस सेम तरीके से 1/√2 को 1/√n से बड़ा दिखा रहा हूं, यस और नो? ट्रू है ना ये? Yes, sir. एंड सो ऑन, लास्ट तो 1/√10 ही रख रहा हूं। तो यहाँ पे देखो जो लास्ट टर्म है उसको मैंने n टाइम्स लिख दिया, और दिस टर्म विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन टू दिस टर्म, है ना? ये जो प्रीवियस टर्म है वो इससे ऑलवेज बड़ा ही होगा कि नहीं? दिख रहा है? Yes. ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है, तो n/√10 है ना, क्योंकि ये n टाइम्स है, तो 1 + 1 + 1 + 1 कितनी टाइम्स? n, तो n/√10। इज इट क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आप लिमिट निकालते हो n टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n अपॉन रूट एन इज रूट एन, सो आप जैसे इन्फिनिटिव रिप्लेस करेंगे सो इसका आंसर आएगा 0 है इन्फिनिटिव, क्या आएगा? Infinity. Infinity. ओके, तो इन्फिनिटिव आया, दैट मीन्स एज पर दी अवर नॉलेज व्हाट इज इट? Divergent. डाइवर्जन। ओके, डाइवर्जन मिला। तो देखो यहाँ पे लिमिट 0 हो रहा था तो कन्वर्जन नहीं हुआ, दैट मीन्स कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट नीड नॉट बी ट्रू। इज इट क्लियर एवरीबडी? Yes, sir. ओके, तो यहाँ वही का वही यहाँ पे डिस्कशन है। सिंस द टर्म गो ऑन डिक्रीजिंग, सो 1 + 1 अपॉन रूट 2 + 1 अपॉन रूट 3 + 1 अपॉन रूट n ग्रेटर देन 1 अपॉन रूट n + 1 अपॉन रूट n एंड सो ऑन, एंड दिस इज नथिंग बट n अपॉन रूट n। इसकी आप लिमिट निकालेंगे तो इन्फिनिटी, देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट इवन थ्रू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 0। ओके, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर ये 0 नहीं होगा तो 100% डाइवर्जेंट होगा, दैट इज द ट्रू, क्योंकि इसका नेगेशन हो गया ना वो। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, तो दैट इज द नेक्स्ट। ओके, ये देखो सम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 0 इज अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस। ये सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हमको टेस्ट अलग अलग डिफाइन करने पड़े। लेकिन डाइवर्जेंट के लिए सिंपल हो जाता है, दैट इज द जीरो टेस्ट, इट इज नोन एज द जीरो टेस्ट। इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un not equal to 0, then the series summation n equal to 1 to infinity un does not converge, means it is not convergent। उसका नेगेशन हुआ ना टोटली। Yes, sir. Okay, so is there any doubt up to here, anybody? No, sir. What about others? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Now we go for the geometric series, वो भी आप पढ़ के आए हो। तो geometric series क्या है आपको पता है कि consider geometric series a plus ar square up to so on ar raised to n minus 1 and so on। so Sn इसका अगर मैं निकालता हूँ तो Sn is equal to a plus ar square up to so on ar raised to n minus 1 होगा कि नहीं? yes or no? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे x3 ये होना चाहिए ए आर रेस टू एन, है ना, एन टर्म। लेकिन यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, तो 0 से n आप काउंट करेंगे तो आपका n-1 जो है दैट इज योर nth प्लेस। अंडरस्टैंड एवरीबडी? Yes, sir. Okay, so Sn is equal to this one, so limit। okay, अब इसके लिए देखो Sn is equal to ये है, उसके लिए हमारे पास 3 डिफरेंट क्राइटेरिया है कि अगर आप उसका रेशियो निकाल देते हो और रेशियो मॉड्यूलस ऑफ r लेस देन 1 है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r रेज टू n इज इक्वल टू 0 होगा। वो हमने लिमिट वाले कॉन्सेप्ट देखे थे ना, याद आया फॉर्मूलाज? Yes, sir. ओके, वहां पे मैंने आपको बताया था कि -1 लेस देन x लेस देन 1 है तो उसका लिमिट x रेज टू n वाला 0 होगा। डिस्कस किया कि नहीं हमने वहां पे? Yes, sir. तो यही है, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r रेज टू n इज इक्वल टू 0, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। ओके, अब ये देखो इसका आपको पता था कि इसका सम क्या होता है ना, आप पढ़ के आए हो ना सम, इसका सम क्या होगा? तो a1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये पार्शियल सम था ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा फाइनाइट, और ड्यू टू फाइनाइट मॉड्यूलस r लेस देन 1 में जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. बी सेम, इससे डिफरेंट मीन्स अगर r ग्रेटर देन 1 है
व्हाट वी कैन डू, तो r ग्रेटर देन 1 है तो उसके लिए हमने देखा था लिमिट में, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r रेज टू n टेंस टू इनफाइनाइट, दैट मींस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो पार्शियल सम है वो भी इनफाइनाइट की ओर जाएगा, दैट्स व्हाई ओके द गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर r greater than 1. Clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. And C, r is equal to 1 के लिए इफ r जो रेशियो है वो 1 होगा तो हमारा ऐसे नहीं चेंज हो जाएगा, a plus a plus a plus up to a n times, so you can say that n into a. ओके अगर n into a है तो आपको क्या करना है, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s n टेंस टू क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट, क्योंकि n यहाँ पे प्रेजेंट है. क्लियर? तो इनफाइनाइट हुआ तो व्हाट वी कैन से Divergent. divergent. So you have the two divergent cases and one convergent cases. तो यहाँ पे देखो लास्ट नोट देखो, नोट को याद रखना तो एग्जाम्पल इजीली कर पाएंगे. ज्योमेट्रिक सीरीज a plus ar square up to ar raised to n minus 1 and so on is number 1 convergent if modulus r less than 1, divergent if r greater equal to 1, मीन्स यहाँ पे देखो r greater than 1 किया तो भी डाइवर्जेंट था, r equal to 1 किया तो भी डाइवर्जेंट, अगर दोनों को क्लब करूंगा तो r greater equal to 1 हो जाएगा, तो r greater equal to 1 के लिए डाइवर्जेंट. और दूसरी जो कंडीशन है जहां पे ये दोनों फेल हो रहे हैं वहां पे वो ऑसिलेटरी होगा, तो ऑसिलेटरी कहां पे होगा, सो r लेस और इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पे देखो दिस इंडिकेट्स -1 लेस देन r लेस देन 1, दिस इंडिकेट्स 1 लेस और इक्वल टू r लेस देन इंफिनिटी, क्योंकि ये बड़ा हो सकता है लेकिन इनफाइनाइट है. तो व्हाट अबाउट द नेगेटिव साइड ऑफ दिस पार्ट, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो -1 ओके ग्रेटर इक्वल टू सॉरी हाँ माइनस इन्फिनिटी लेस और इक्वल टू सॉरी लेस देन, इन्फिनिटी पे तो इक्वल टू होता ही नहीं है, r लेस देन इक्वल टू -1 होगा तब ये ऑसिलेटरी होगा. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay, and you also know about the sum of that whole geometric series, means ये जो sum है ये पूरा इसका sum अगर आपको फाइंड करने के लिए बोले तो what is the sum, s is equal to a upon 1 minus r होता है. Clear everybody? Yes, sir. ये नहीं, ये मैंने Sn नहीं लिखा है, Sn का तो सम मैंने आपको दिखाया कि Sn का यही सम होगा, लेकिन जो टोटल है इनफाइनाइट टर्म के साथ उसका s हो जाता है a upon 1 minus r, टोटल सम. ओके सो द सम ऑफ द सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज इज s is equal to a upon 1 minus r. So is there any doubt in this slide, anybody? No, sir. No, sir. Okay, so how many students understand today's session? Please raise your hand. Very good. 52 students understand. Okay. What about the Nirva, Jadav, Hiten, Vihar, Pratik? Any doubt, beta? No, sir. Okay. 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 So we stop here क्योंकि next example जो है वो हम next lecture में discuss करेंगे. So is there any doubt? सर Yes, beta. No. सर सारी पीडीएफ अपलोड कर देना ना प्लीज. Yes, yes, beta. I am doing today. Okay, I complete कर दूंगा मैं आज. ओके सर, थैंक यू.